Hello friends, welcome to the universe of the law, and today we are going to see some most important terms which we use in law. Okay, so every law student should know this basic terms, so let's begin. Okay, and the first word is the law. जैसे कि आप लोग देख ही रहे हैं लॉ वर्ड, हम लॉ पढ़ रहे हैं तो लॉ का मतलब तो हमें पता ही है, इट्स जस्ट अ कानून. द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ जस्टिस बाय सर्टेन रूल्स. जस्टिस कानून और न्याय का एडमिनिस्ट्रेशन जो कि सर्टेन रूल्स पे डिपेंड होता है, दैट इज़ लॉ. And the next word is civilization, stage of human social development and a process by which society reaches at advanced stage. It's civilization का basic mean है, it's a social development, social upgradation. Okay, and the next word is it's a judge. हम सब ने देखा है कोर्ट में जज होते हैं. सो जज का क्या काम होता है? दे डिसाइड the decisions on a case. Okay, person to decide on a case, that is judge. And the next one is jury. Basically jury means body of the people who are judge. Okay, जो कि केस में जो डिसीजंस है, कभी केसेस में जज जो लेते हैं, ज्यूरी भी वही काम करते हैं. सेम, द बॉडी ऑफ द पीपल हु आर अ जज. एंड द ज्यूरीज, बॉडी ऑफ पीपल डीलिंग विथ लॉ. वो लोग जो लॉ से डील करते हैं, दे आर कॉल्ड एज ज्यूरीज. And the next word is jurist, person who is expert on law or who is a lawyer or judge. Like lawyer, advocate, judge, they all are also called as jurist because person who is expert on law, यहाँ पर साफ साफ बता रहा है जो person जो human body law में expert है, that is called as jurist. They all are called as jurist. Okay, the next word is jurisdiction. Jurisdiction legally means legal power to make decisions and judgments, which is kind of authority, control or power to hear the case. Legal jurisdiction का normal meaning है authority, control और power to hear the case. ये एक legal power है जो कि decisions and judgments देता है, jurisdiction जिसे कहा जाता है. And the next word we will see, and the next word is the lawyer. लॉयर हम सभी को पता है लॉयर का मतलब होता है जनरल टर्म फॉर पीपल हु गिव लीगल एडवाइस. लॉयर एंड एडवोकेट, यहाँ पर बहुत सारे लोगों को कन्फ्यूजन होते हैं कि लॉयर एंड एडवोकेट में क्या डिफरेंस है. सो द लॉयर इज़ द जनरल टर्म फॉर पीपल हु गिव लीगल एडवाइस ओनली, एंड द एडवोकेट इज़ द लॉयर हु प्रैक्टिस इन कोर्ट. ओके, लॉयर जो होते हैं वो कोर्ट में प्रैक्टिस नहीं करते हैं, और जो लॉयर कोर्ट में प्रैक्टिस करते हैं उन्हें एडवोकेट कहा जाता है. ओके, सो नॉर्मली जब ग्रेजुएशन कंप्लीट होता है लॉ के फील्ड से, जो लोग ग्रेजुएशन कंप्लीट करते हैं दे बिकम एज लॉयर. एंड जब वो बार काउंसिल के एग्ज़ाम देते हैं, आफ्टर दैट एग्ज़ाम दे बिकम एन एडवोकेट. ओके, सो एंड जब एडवोकेट बनने के बाद ही लॉयर्स जो होते हैं वो कोर्ट में प्रैक्टिस करते हैं. And the next word is attorney, lawyer who represents clients in court. Advocate वो होते हैं जो कोर्ट में प्रैक्टिस करते हैं, and the attorney means the lawyer who represents clients in court. Okay, and the next word is solicitor. Okay, the professional who provides legal advice. The professional who provides legal advice to clients. That is called as solicitor. Solicitor basically गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ होते हैं, गवर्नमेंट प्रोफेशनल्स होते हैं जो कि सिर्फ लीगल एडवाइस देते हैं क्लाइंट्स को. एंड द नेक्स्ट इज बैरिस्टर, एडवोकेट हु प्रैक्टिस इन हायर कोर्ट. दैट इज कॉल्ड एज बैरिस्टर. द नेक्स्ट वर्ड इज verdict, द डिटर्मिनेशन ऑफ गिल्ट और इनोसेंस मेड बाय द जज और ज्यूरी. वर्डिक्ट का बेसिकली मीनिंग है a decision, okay, a determination or a decision of guilt or innocence made by the judge or jury. Means जो criminal है उस पर जो भी decisions आता है, whether criminal is a guilty or criminal is a innocence, ये जो decisions है उसे normally verdict कहा जाता है. Okay, and the next word is witness. Witness तो हम सभी को पता ही है, a person called upon during a trial to give a testimony before the court. कोर्ट के सामने जो टेस्टिमनी यानी ओरली जो अपना गवाही पेश करते हैं,
they are called as witness. So misdemeanor, a less serious crime punishable by a maximum of 1 year imprisonment. यहाँ पर we can see that a less serious crime, the misdemeanor means a less serious crime punishable by a maximum of 1 year imprisonment. Okay, and the next one is mistrial. Mistrial means an invalid trial which leads to the restarting of the same case with a new jury. Means the same case जिसका फर्स्ट ट्रायल वैलिड नहीं रहता, तो उसी केस को फिर से रीस्टार्ट करना होता है न्यू ज्यूरी के साथ. सो दैट इज़ कॉल्ड एज मिस ट्रायल. एंड द नेक्स्ट वर्ड विल सी इट्स अ acquittal, a verdict from a judge or jury that a criminal defendant is not guilty or the evidence is insufficient to support a conviction. It means a verdict. Verdict is in the sense decision जो कि जज और ज्यूरी से आया हुआ है कि whether criminal is guilty or not. और यहाँ पर बताया गया है कि ऐसा verdict और ऐसा decisions जो कि जज और ज्यूरी ने बताया है जिसमें कि criminal defendant is not guilty or the evidence is insufficient to support a conviction. कि क्रिमिनल के अगेंस्ट में क्रिमिनल को क्रिमिनल बताने के लिए जो भी एविडेंस प्रोवाइड किए गए हैं कोर्ट में वो इनसफिशिएंट है. इससे यह साबित नहीं होता है क्रिमिनल ने एक्चुअल में वो क्राइम किया है, ये साबित नहीं होता है. तो उस वर्डिक्ट को यानी उस डिसीजन को एक्विटल बोला जाता है. ओके, अ वर्डिक्ट फ्रॉम अ जज एंड ज्यूरी दैट अ क्रिमिनल डिफेंडेंट इज नॉट गिल्टी or the evidence is insufficient to support a conviction, that is acquittal. So the next word is admissible. Evidence is considered admissible if it meets all of the standard required to present it in a court of law. Means अपने केस को साबित करने के लिए जितने एविडेंस की ज़रूरत है वो सारे एविडेंस अगर मौजूद है तो दैट ऑल एविडेंस आर एडमिसिबल. सो वो जितने भी एविडेंस होता है उसे एडमिसिबल कहा जाता है इफ़ इट मीट्स ऑल ऑफ द स्टैंडर्ड रिक्वायर्ड टू प्रेजेंट इन द कोर्ट ऑफ लॉ. सो द नेक्स्ट वर्ड इज एफिडेविट, अ स्टेटमेंट मेड अंडर ओथ. ओके, आप सब जानते हैं ओथ यानी शपथ. शपथ के अंडर में जो भी स्टेटमेंट रिटन और प्रिंटेड फॉर्म में लिया जाता है दैट इज़ कॉल्ड एज एफिडेविट. ओके, the next word is alternative dispute resolution. It's an ADR, alternative dispute resolution. A way to settle a dispute outside of the courtroom. Most ADRs involve the help of a neutral third party, such as a mediator or arbitrator. मीन्स जो भी केसेस कोर्ट के अंदर ना सॉल्व के बजाय ना होने के बजाय कोर्ट के बाहर ही सेटल कर दिए जाते हैं सारे डिस्प्यूट्स. सो दैट इज़ कॉल्ड एज अल्टरनेटिव डिस्प्यूट रिजोल्यूशन, कि जो कोर्ट रूम के बाहर ही सेटल हो गया. सो अ रिक्वेस्ट अपील, द नेक्स्ट वर्ड इज अपील, अ रिक्वेस्ट मेड आफ्टर अ ट्रायल बाय द लूजिंग पार्टी टू हैव द केस रिव्यूड बाय अ हायर कोर्ट. जो भी लूजिंग पार्टी होती है जो कि ट्रायल कोर्ट्स में उन्हें सेटिस्फेक्शन नहीं मिलता है तो वो अपने केस को रिव्यू करने के लिए हायर कोर्ट में अपील करती है यानी रिक्वेस्ट करती है. सो दैट इज़ कॉल्ड एज अपील. सो द नेक्स्ट वर्ड इज बेंच ट्रायल, अ ट्रायल वेयर द जज एक्ट्स एज अ डिसीजन मेकर इंस्टीड ऑफ अ ज्यूरी. ऐसा ट्रायल जो कि ज्यूरी के जगह पर जज एक्ट करते हैं, जो भी डिसीजन मेकर होता है वो जज होते हैं इंस्टीड ऑफ ज्यूरी. सो दैट इज़ कॉल्ड एज बेंच ट्रायल. द नेक्स्ट वर्ड इज़ क्लास एक्शन लॉ सूट. ओके, लॉ सूट का बेसिकली मीनिंग है मुकदमा. ओके, सो अ लॉ सूट इन विच एन इंडिविजुअल और अ स्मॉल ग्रुप sues an entity on behalf of a much larger group, that is thousands of customers suing a company for damages caused by a faulty product. So यहाँ पर ये बताया गया है कि इंडिविजुअल या फिर स्मॉल ग्रुप जो होते हैं वो एक एंटिटी को सू करता है. एंटिटी यानी कोई बड़ी कंपनी या फिर कोई बड़ा लार्ज ग्रुप और लार्ज कंपनी. सो उसे सू करते हैं किसी, फॉर एग्जांपल यहाँ पर दिया गया है कि थाउजेंड्स ऑफ कस्टमर्स सुइंग अ कंपनी फॉर डैमेजेस कॉज्ड बाय अ फॉल्टी प्रोडक्ट. ओके,
इट मीन्स इंडिविजुअल और स्मॉल ग्रुप एक लार्ज ग्रुप यानी एंटिटी को सू करते हैं. सो दैट इज कॉल्ड एज क्लास एक्शन लॉ सूट. ओके, द नेक्स्ट वर्ड विल सी it's a community service, a verdict in which the court requires an individual to work without pay for a non-profit organization. Community service means a verdict in which means एक ऐसा डिसीजन लिया गया जिसमें कोर्ट रिक्वायर्स एन इंडिविजुअल टू वर्क विदाउट पे फॉर अ नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन, और ये कोर्ट के थ्रू ही डिसाइड किया जाता है. द नेक्स्ट वर्ड इज कन्विक्शन, a guilty verdict against a criminal defendant. यहाँ पर नॉर्मली आपको समझ आ रहा होगा, a guilty verdict against a criminal defendant. Okay, that is called as conviction. And the next word is defendant, the individual or business against whom a lawsuit is filed. Okay. जो मुकदमा जिस पे चल रहा होता है वो होता है defendant. And the next word is evidence, facts or items presented in the court of law with the intention to persuade the judge or jury. So evidence तो आप सबको पता ही है, सबूत जज और ज्यूरी को मनाने के लिए या फिर उन्हें बताने के लिए कि ये जो केस है इसमें केस का नॉर्मली डिसीजंस और केस की सच्चाई को सामने लाने के लिए जो भी चीज़ें प्रोवाइड की जाती है, सबूत जो प्रोवाइड की जाता है, दैट इज़ कॉल्ड एज एविडेंस. ये एक नॉर्मल सा वर्ड है जो कि हम सभी जानते हैं, इवन हर कोई जानता है. एंड द नेक्स्ट वर्ड इज़ felony. Felony is a serious crime usually punishable by a minimum of 1 year in imprison. felony का नॉर्मली यहाँ पर दिख रहा है और serious crime. Okay. And the next word we'll see, it's a hearsay. Hearsay is normally means कि वो ऐसा विटनेस होता है कि जिसने कहीं से ये बातें सुनी हो और वो आके वो कोर्ट में बता रहा है. अब वो कोर्ट में उसने ये चीज़ देखा नहीं है पर उसने ये चीज़ कहीं से सुनी है, इसलिए वो यहाँ पर कोर्ट में बता रहा है. सो दैट विटनेस इज कॉल्ड एज hearsay witness. So information presented by a witness who did not see the incident in question but rather heard about it from someone else. Okay, and the next word is litigation, another word for a court case or a lawsuit. Litigation is same as muqaddama, lawsuit, court case. And the next word is litigator. Litigator represents plaintiffs or defendants in court and manage all litigation process. Plaintiff का meaning होता है normally जिसने नॉर्मली केस किया हो वो होता है प्लेंटिफ, और जिसके अगेंस्ट में केस चल रहा हो वो होता है डिफेंडेंट. ओके, प्लेंटिफ मीन्स जिसने केस डाला है, जिसने केस किया है, दैट इज प्लेंटिफ. ओके, लिटिगेटर रिप्रेजेंट्स प्लेंटिफ्स और डिफेंडेंट्स इन कोर्ट एंड मैनेज ऑल लिटिगेशन प्रोसेस. सो दैट इज अ लिटिगेटर. एंड द नेक्स्ट वर्ड इज प्लेंटिफ. And the same हमने देखा, a person or a business who files the lawsuit with a court, जिसने मुकदमा फाइल किया है. And the next word plea bargain, an agreement made between the plaintiff and defendant where the defendant agrees to plead guilty in order to receive a lesser punishment, also known as plea deal. plea bargain कहा जाता है, जहाँ पर डिफेंडेंट होता है जिसने कोई जुर्म किया है, वो एग्री हो जाता है मानने के लिए कि यस मैंने ये जुर्म किया है, बिकॉज अगर वो एग्री करते हैं तो उनकी जो पनिशमेंट होती है वो थोड़ी कम हो जाती है. सो इसीलिए वो एग्री कर लेते हैं. सो ये होता है प्लिया बार्गेन, प्लिया डील भी इसे बोला जाता है. सो द नेक्स्ट वर्ड विल सी, इट्स अ सेटलमेंट. Settlement is parties resolve their dispute without trial. This usually involves the payment of the defendant to at least the partial satisfaction of the plaintiff. मतलब जिसने फर्स्ट केस किया है उसके satisfaction के लिए. So next word is testimony. Testimony means evidence presented orally by witness during trials. Witness जो भी evidence देते हैं, so that is called as testimony. So these all were some basic terms which we use in law. So अगर आपको इनमें
कोई भी प्रॉब्लम हो या फिर कोई वर्ड नहीं समझ में आए या फिर आपको कोई क्वेश्चन है, सो यू कैन कमेंट, ओके। सो कमेंट में आप मुझसे पूछ सकते हैं, जो भी आपको प्रॉब्लम हो आप कमेंट में पूछ सकते हैं। सो थैंक यू and be in touch for more upcoming updates. Follow us on Instagram. The link is in description. Thank you.